So now today I am discussing chemical properties of glucose. In our previous chapter, I have already discussed physical property of glucose, in which mutar rotation is very important. So this is the structure of glucose, in which there are 6 carbons are here, and the third OH attached with third carbon atom is at the left hand side, other OH are on the right hand side. This is the absolute configuration of glucose. Now reaction of glucose, because we know that in the case of glucose there are two functional groups are here. First one is aldehyde CHO group, and second one is OH hydroxyl group. So first I have taken the reaction due to the presence of this aldehydic group CHO group. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन. तो जो ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड oxidizing agent as well as in the presence of strong oxidizing agent. For example, bromine water, it's a mild oxidizing agent. In the case of mild oxidizing agent, only CHO group is converted into COOH group. But in the case of strong oxidizing agent, both terminal carbons are oxidized and converted into COOH group. So it means by strong oxidizing agent, this carbon and this carbon, terminal carbons are converted into COOH group. So first one is with bromine water, because this is a mild oxidizing agent, so CHO group is converted into COOH. Nitric acid, it's a strong oxidizing agent, so it means this CHO and this CH2OH both groups are converted into COOH group. Next reaction with Tollern reagent. Tollern reagent is also a mild और जो फैलिंग सॉल्यूशन है ये भी दोनों कैसे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट मीन्स बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ दीज टू reagent with Tollern reagent and फैलिंग सॉल्यूशन, both CHO group is converted into COOH group. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ठीक, CHO CHOH 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 CH2OH, this is structure of glucose. On the oxidation of bromine water, Tollern reagent और फैलिंग सॉल्यूशन, कोई भी reagent प्रेजेंट होने पर दिस CHO group is converted into COOH group, and this is known as gluconic acid. ठीक है, the name of this product is gluconic acid. And when we oxidize this glucose with nitric acid, because nitric acid is a strong oxidizing agent, then this CHO group is converted into COOH, along with this CH2OH is also converted into COOH group. ठीक है, तो both terminal carbons are oxidized and converted into COOH group, and the name of this compound is सैकेरिक एसिड और ग्लूकेनिक एसिड. ठीक है, तो इसका नाम सैकेरिक एसिड या ग्लूकेनिक एसिड, और इसका नाम क्या आपका ग्लूकोनिक एसिड. अब हम जानते हैं क्या होता है टॉलन रिएजेंट की. यदि रिएक्शन आप लिखे हैं तो क्या होता है टॉलन रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. सो इट मीन्स AgNO3 प्लस अमोनियम. अमोनिकल करने के लिए क्या डाला जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. ओके, तो AgNO3 प्लस NH4OH, व्हेन दीज टू सबस्ट्रेट रिएक्ट विथ ईच अदर, दे आर कन्वर्टेड इनटू क्या बना देगा आपका, देखो, अमोनियम नाइट्रेट एंड सिल्वर हाइड्रोक्साइड. ओके, सो AgOH एंड अमोनियम नाइट्रेट. एंड फाइनली जो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है अनस्टेबल होता है, एंड फ्रॉम द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड वन वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट, एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर ऑक्साइड. तो जिस समय हम टॉलन रिएजेंट के साथ रियल में रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है आपका, जो ये Ag2O बनता है. ठीक, तो क्या रिएक्शन हुई, देखो, ग्लूकोज, चाहो तो यदि एग्जाम में आता तो इसी तरीके का लीनियर या साइक्लिक स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं. तो ग्लूकोज प्लस Ag2O, फ्रॉम वेयर दिस Ag2O comes from Tollern reagent. Okay, so when these two reactant react with each other, this glucose is converted into gluconic acid. तो ये क्या करता है आपका, देखो, जो ये Ag2 है, अपना ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है. तो जो CHO ग्रुप है ऑक्सीजन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में, एंड 2Ag वो फ्री हो जाएंगे. और तुम्हें पता है क्या बनता है फिर आपका टॉलर रिएजेंट के साथ, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होता है. ठीक, तो ये कौन सी रिएक्शन है फिर आपकी विथ टॉलर रिएजेंट. लाइकवाइज यदि हम फैलिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है आपका, कॉपर सल्फेट प्लस NaOH. तो दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो, फिर Na2SO4 ये अलग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CuOH का होल ट्वाइस. So by the reaction of CuSO4 and twice NaOH, these are converted into CuOH का whole twice plus Na2SO4. अगेन जैसे क्या था, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से वाटर एलिमिनेट हो जाता है, तो ऐसे ही क्या होता है आपका, जो ये आपका CuOH का होल ट्वाइस है, उसमें से क्या एलिमिनेट हो जाता है आपका, जैसा समझो 2 OH है इसके साथ, सॉरी कोवेलेंट नहीं होता, इसलिए हटाओ उसको, OH लिखो, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका CuO. तो जो ये कॉपर का हाइड्रोक्साइड है ये किस में कन्वर्ट होता है, CuO प्लस H2 है. एंड फाइनली द ग्लूकोज रिएक्ट विद दिस क्यूप्रस ऑक्साइड, एंड
convert this compound glucose into gluconic acid and cuprous oxide. This one is cupric oxide and this one is cuprous oxide. ठीक है, यहाँ पर कितना स्टेट है इसका +2 और यहाँ पर को कितना है इसका +1. ठीक, तो ये क्या होता है आपका, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोनिक एसिड में, और जो ये आपका क्या बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है. ठीक, नेक्स्ट है आपका, तो ये ऑक्सीडेशन की बात थी. नाउ सेकेंड रिएक्शन इज रिडक्शन. तो रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो ग्लूकोज में हम जानते हैं कौन सा ग्रुप है आपका CHO. तो CHO का जब रिडक्शन होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड्स आपके एल्कोहल्स में. ठीक है, तो क्या होता है आपका, व्हेन वी रिड्यूस दिस ग्लूकोज विथ सोडियम अमलगम प्लस वाटर NaHG प्लस वाटर, देन दिस CHO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CS2OH. इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है. रिडक्शन होने पर CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्कोहल्स में. तो CHO ग्रुप्स आर कन्वर्टेड इनटू CS2OH. बट व्हेन वी यूज हाइड्रोजन आयोडाइन एंड फॉस्फोरस, तो सभी कार्बन्स का कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है, मतलब ये भी रिड्यूस ऑक्सीजन का रिमूवल भी ऑल्सो नोन एज रिडक्शन. ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू आइदर ऑन हेक्सेन, या क्या बनता है आपका 2-आइडोहेक्सेन बनता है. तो रिडक्शन की अगेन 2 रिएक्शंस हो गई. फिर किसके साथ हो गया आपका, एक तो सोडियम अमलगम और वाटर के साथ रिएक्शन हो गया, और सेकंड किसके साथ हो गया फिर आपका रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ. तो सोडियम अमलगम वाटर क्या करता है, सिर्फ CHO का ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है, लेकिन जो रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड है वो सब कार्बन्स का रिडक्शन कर देता है, उसको हेक्सेन में और 2-आइडोहेक्सेन में कन्वर्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप्स क्या होती है आपकी, कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन. So first one is reaction with hydrogen cyanide HCN, and we know in HCN H कैसा होता है पॉजिटिव एंड CN कैसा होता है आपका नेगेटिव. और जो एल्डिहाइड ग्रुप है दिस इज C+O सिंगल बॉन्ड H, दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड दिस इज HCN. तो ये बॉन्ड पोलराइज होगा तो कैसे होगा, इस तरीके से होगा, ये O नेगेटिव हो जाएगा, ये C पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, और इस C पॉजिटिव से क्या अटैच होगा फिर, वी नो दैट कार्बन CN में कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, तो ये CN यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा. ठीक है, सॉरी दिस इज एडिशन रिएक्शन. ठीक है, तो ये बन गया आपका एडिशन. तो क्या बनता है आपका, जब एल्डिहाइड का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो कंपाउंड्स बनते हैं दोस कंपाउंड्स आर नोन एज साइनोहाइड्रीन्स. क्या कहलाते हैं आपके, साइनोहाइड्रीन. सो इफ कंपाउंड इज ग्लूकोज द प्रोडक्ट इज ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन. तो जो कंपाउंड बनेगा उसका क्या नाम होगा फिर आपका ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन. एंड ऑन हाइड्रोलिसिस of this compound and we know that by the hydrolysis of cyanide किस में कन्वर्ट होता है cyanide group, COH में. तो on hydrolysis this cyanide group is converted into COOH. किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर आपका COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. एंड फाइनली जब हम क्या करते हैं इसका अगेन क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिडक्शन करते हैं, तो जो नीचे की चेन है वो सारा क्या हो जाती है आपकी रिड्यूस हो जाती है. तो COH तो ऐसा ही रह जाता है. तो नीचे कितने कार्बन है ग्लूकोज में 6, तो इट मीन्स CS2 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 CS3 6 कार्बन ये, एंड दिस वन इज COH. तो दिस हाइड्रोक्सी एसिड इज कन्वर्टेड इनटू हेप्टेनोइक एसिड. क्या बन जाता है, देखो चेन लेंथनिंग हो रहा है. पहले भी कभी मैंने तुम्हें बताया, कभी भी चेन लेंथनिंग करनी है तो हमारे माइंड में साइनाइड की बात आनी चाहिए, क्योंकि साइनाइड हम कहीं पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो ईजिली COH में कन्वर्ट हो जाता है. और एक चेन जो 6 मेंबर चेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है आपका 7 मेंबर चेन में. तो दिस इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड. हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एडिशन देता है, कैसे देता है, हाइड्रोजन साइनाइड H पॉजिटिव CN नेगेटिव. एंड व्हेन एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड this they form a adduct and that is known as cyanohydrine. So glucose when react with hydrogen cyanide it gives a glucose cyanohydrine. On hydrolysis of this compound cyanide group is converted into COH group, and finally by reduction with hydrogen iodine and red phosphorus whole chain except this COH group other carbons are converted into एल्केन चेन में. ठीक है, सो इट मीन्स दिस 6 ग्लूकोज कार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू CS2 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 CS3 एंड ये COH ऐसा रहता है. सो इट मीन्स कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू हेप्टेनोइक एसिड. तो दिस इज रिएक्शन विथ HCN. और क्या होता है, कभी कन्वर्जन पूछा जाता है कि ग्लूकोज से हम कैसे हेप्टेनोइक एसिड बना सकेंगे, तो चेन लेंथनिंग है, पता होना चाहिए कैसे की जाती है. सेकेंड, अब यहाँ पर जो वहाँ पर हुई थी कंडेंसेशन रिएक्शन, यहाँ से स्टार्ट है. सबसे पहले जो कंडेंसेशन रिएक्शन है
वो कौन सी है, हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या हुआ, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है OH और एमीन क्या होता है आपका NH2। सो हाइड्रोक्सिल एमीन इज NH2OH, दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, कंडेंसेशन। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ तो एडिशन था, बट दिस इज कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन में क्या होता है आपका, टू मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, इस तरीके के मॉलिक्यूल इलिमिनेट होते हैं। ठीक है, तो क्या है देखो, दिस इज ग्लूकोज अगेन इन द थर्ड कार्बन एटम OH, किस साइड लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सारे OH कहाँ लिख दो आपके राइट हैंड साइड, प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन मीन्स NH2OH। तो कैसे रिएक्शन होती है कंडेंसेशन में, दिस H2 रिएक्ट विथ दिस ऑक्सीजन एटम एंड दिस वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट फ्रॉम हेयर एंड दिस कार्बन डबल बॉन्ड NOH क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, बाकी नीचे की चेन थी जो थी वैसा का ऐसा ही उतारेंगे, सिर्फ यहाँ पर चेंज है, जहाँ पर ऑक्सीजन था वहाँ पर लिख दो कार्बन डबल बॉन्ड NOH। ठीक, नाम क्या होता है, बिकॉज ये जो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जो रिएक्शन होती है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कंपाउंड्स आर नोन एज ऑक्सीम्स। ठीक है, तो ये क्या बनता है आपके, ऑक्सीम्स बनते हैं। ठीक, सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज इज रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्राजीन। ठीक, हाइड्राजीन जानते हो क्या होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इज नोन एज हाइड्राजीन। तो NH2 इज नोन एज हाइड्राजीन and here a word phenyl is also here, so it means when one hydrogen of this NH2 group is replaced by phenyl group, then compound is known as phenylhydrazine. So formula of phenylhydrazine is PH, phenyl group, from this NH2 it is converted into NH, तो PH NH NH2 this is phenylhydrazine। ठीक, और हाइड्राजीन क्या होता है, NH2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 3 स्टेप्स में होती है एंड द फाइनली प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज नोन एज ग्लूकोसाजोन। क्या बनता है आपका, ग्लूकोसाजोन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कैसे होती है देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगेन देखो, थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारी जगह राइट हैंड साइड में, एंड फर्स्ट कार्बन CHO। एंड व्हेन दिस रिएक्ट विथ फेनिल हाइड्राजीन, देखो PH NH NH2 लिखना ऐसा होता है कि H2 और O सामने आ जाए तो वन वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट फ्रॉम हेयर मीन्स -1 H2O एंड क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड NNHPH। दिख रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड NNHPH मतलब कार्बन डबल बॉन्ड, और जो बचा है ऐसा ही लिख दो, बाकी नीचे का स्ट्रक्चर ऐसा ही उतार दो। दिस इज नोन एज ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। क्या कहलाता है आपका, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। ये फेनिल हाइड्राजोन है, ये क्या है आपका, ग्लूकोज है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखो, यही कंपाउंड सेकेंड स्टेप में इसको नीचे उतारेंगे, C डबल बॉन्ड NNHPH जो भी था ये उतारा। ये क्या करता है, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फेनिल हाइड्राजीन। फेनिल हाइड्राजीन मीन्स PH NH NH2 और यू कैन ऑल्सो राइट C6H5 NH NH2। ठीक है, सो व्हेन दीज टू रिएक्ट विथ ईच अदर तो क्या निकल जाता है, एनिलीन निकल जाता है, मीन्स C6H5 NH2। ठीक, और ये क्या करता है आपका, अभी पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म। जो सेकंड नंबर का कार्बन है उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, तो बाकी वैसा ही रहेगा जैसा था, C डबल बॉन्ड N, ये थर्ड कार्बन, सिर्फ जो सेकंड कार्बन है उसको क्या कर देता है, ये आपका ऑक्सीडाइज कर देता है। इट मीन्स दिस CHOH इज कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड बिकॉज दिस इज अ सेकेंडरी एल्कोहल एंड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल इट गिव्स कीटोन। सो क्या होता है आपका, सेकेंड स्टेप में जब हम दोबारा से रिएक्शन करते हैं जो फर्स्ट स्टेप में बना है उससे, तो वो क्या करता है आपका, फिर से फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता है एंड सेकेंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस एल्कोहलिक ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कीटोनिक ग्रुप। तो क्या बन गया फिर आपका, ये C डबल बॉन्ड NNHPH CO और बाकी जैसा था नीचे का ऐसा ही रहेगा एंड दिस इज नोन एज ग्लूकोसोन हो गया। ठीक है, ये ग्लूकोज था लेकिन ये ओन हो गया। ठीक है, ओन मतलब होता है कीटोन, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोसोन। ठीक, और नाम फिर वही है फेनिल हाइड्राजीन, जोन। ठीक है, जीन से जोन बनते हैं, तो फेनिल हाइड्राजोन। एंड फाइनली क्या होता है देखो, दिस इज फाइनल स्टेप। इन द फाइनल स्टेप वो उतारेंगे आपका क्या, ग्लूकोसोन फेनिल हाइड्राजोन, वही था आपका, उसकी फिर से रिएक्शन करता है एक किसके साथ, फेनिल हाइड्राजीन, इस मीन PH NH NH2 के साथ। अगेन वन वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट फ्रॉम हेयर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड NNHPH। क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NNHPH, बाकी जैसा था ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक, तो ये बना, तो दिस इज नोन एज ग्लूकोसाजोन। ठीक है, तो क्या होता है आपका, ग्लूकोज की जब फाइनली हम क्या करते हैं आपका
फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में बनता है, सिर्फ कुछ नहीं है, ये दोनों रिएक्शन करते हैं, कंडेंसेशन होता है, वाटर निकलता है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन बनता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फिर से फेनिल हाइड्राजीन रिएक्शन करता है, उसका सेकंड कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और थर्ड कार्बन स्टेप में क्या होता है, क्योंकि अभी कीटोन हो गया है तो ये अगेन किसके साथ रिएक्शन करता है, फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता है और फिर से कंडेंसेशन होता है, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड NNHPH एंड दिस इज नोन एज ग्लूकोसाजोन। ठीक है, और ये कैसे होता है, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछा ये जाता है कि वाई ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज बोथ गिव्स सेम ओसाजोन ग्लूकोसाजोन। ठीक, सो यू शुड नो द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, हाउ दिस ग्लूकोसाजोन इज फॉर्मिंग। ठीक है, अब देखो